Now the application part, like I told you in the first lecture that what is the application of double integration. So if the integrand is 1, means the function which we have to integrate is 1, then the integration of like this x1 x2 y1 y2 dx dy will give you the area of the enclosed region. Clear? Means in the first lecture we discussed about some application part, this कि if condition क्या है, if the integrand is 1, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, अगर वो 1 है तो डबल इंटीग्रेशन है, that will give you the area of the region R, this region where we have to integrate this function. Clear? So we are using this application. Okay, we are finding out the areas of some regions. So we will use the application of double integrals, means function is 1. So this is that topic. So the area enclosed by plane curves. So Cartesian form. So like I already told you, in this case, the function is, the integrand is 1. So the integration is like this or this. So what is the difference here? First, here we have to first integrate with respect to y, means these are y limits. Then we have to integrate with respect to x. Similarly, here first we have to integrate with respect to x because these are x limits. Then with respect to y. So what we have to do? First we have to find out the region. So suppose this is your region where we whose area we have to find out. So the application of double integration says that what we have to do, we have to find out the y limits and x limits in this region. Clear? So taking the strip parallel to y axis, the lower limit is here, upper limit is here, and x varies from this point to this point. So using the limits, we will get this integration. Or similarly, and if this is your, means if you have to integrate first with respect to x, then you will take the strip with this parallel to x axis. This will give you lower limit of x, this will give you upper limit of x, and y varies from this point to this point. So we can use this integration. So either we use this form or this form. The integrand is 1 always, means whenever we are finding out the area, that means integrand is 1. Now we need to have the limits. Either we take this form of limits or this form of limits, means order of integration. And for the polar coordinates, the area is equal to where the area is equal to double integration r d theta dr. Clear? Means these are the direct formula, मीन्स फाइंडिंग आउट द एरिया. सो अगर आपको एरिया कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है तो आप या तो ये फॉर्म यूज करोगे जिसमें हमें पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर x के रिस्पेक्ट में, या फिर पहले हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर y के रिस्पेक्ट में. अगर पोलर फॉर्म में कर्व है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, डबल इंटीग्रेशन r d थीटा dr, यानी r हमारा फंक्शन हो गया. अब d थीटा dr यानी हमें r और थीटा की लिमिट्स निकालनी है. तो पहले हम r की लिमिट्स निकालेंगे विच आर इन टर्म्स ऑफ थीटा, देन थीटा की कांस्टेंट लिमिट्स, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वो हमें क्या दे देगा, एरिया इन पोलर फॉर्म. ये दो फॉर्मूले हैं. क्लियर? दिस इज फॉर कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज फॉर पोलर फॉर्म. Now the question, finding the area of a plate in the form of quadrant of the ellipse. इलिप्स का एक क्वाड्रेंट फॉर्म में जो प्लेट बनेगा उसका एरिया क्या होगा? तो इलिप्स आपको पता है ये है, दिस इज द शेप ऑफ इलिप्स. आपको एक क्वाड्रेंट की यानी एक प्लेट का आपको एरिया निकालना है, यानी केवल इस पार्ट का, तो किसी भी पार्ट का, क्योंकि चारों साइड इक्वल है. क्लियर? मींस अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, सो द एरिया ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. किसी भी एक क्वाड्रेंट का आप निकालेंगे वो एरिया आपको दे देगा. तो सपोज पॉजिटिव क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, तो एरिया कैसे निकलेगा? आपको y और x की लिमिट चाहिए. तो इस इलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब इसका हमें एरिया, किसी इसकी एक क्वाड्रेंट का हमें एरिया निकालना है. तो हमें देखिए, अगर हम y के करस्पॉन्डिंग पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हमारा एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया इज the dx dy, means this we will use this formula.
dx dy and the limits of y and limits of x. तो अगर हम y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम y के पैरेलल एक स्ट्रिप बनाएंगे और लिमिट्स निकालेंगे। तो लोअर लिमिट हमें क्या मिलेगी, 0 y की, और अपर लिमिट कहाँ से मिलेगी, इस इलिप्स की इक्वेशन से। तो इस इलिप्स की इक्वेशन में अगर आप y को सॉल्व करोगे, इस इलिप्स की इक्वेशन से हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात करें इसलिए हम केवल प्लस साइन कंसीडर करेंगे। तो y की लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट हो गई प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और इस पूरे रीजन में जो हमें जिसका वॉल्यूम एरिया निकालना है उसमें x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, मिनिमम वैल्यू x की क्या है 0, और अप टू दिस पॉइंट हमें इस पॉइंट तक जाना है, यहाँ x की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो वो क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू a, क्योंकि अगर ये आपका एलिप्स की इक्वेशन है तो x एक्सिस पर ये एलिप्स कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, x इज इक्वल टू a पर, ये इसको तो x इज इक्वल टू a तक। तो x की वैल्यूज क्या होगी, लिमिट्स क्या होंगे, 0 टू a। तो बस इसको इंटीग्रेट कर दिए, क्योंकि इंटीग्रांड 1 है तो बहुत ईजी है। आप पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर जो भी इक्वेशन आया उसको फिर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे, फिर x के लिमिट्स रख दोगे तो ये मिलेगा। दूसरा, अगर इसी इक्वेशन को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, एरिया तो सेम होगा। अगर आप x के रेस्पोंड पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो पहले x के पैरेलल एक स्ट्रिप बनाइए, लोअर लिमिट x की क्या हो जाएगी 0, और अपर लिमिट कहाँ से मिलेगी, इस एलिप्स से। सो इस एलिप्स में अब सिमिलरली जैसे y को सॉल्व, y के लिए सॉल्व किया है, अब आप x के लिए सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस a स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस लेंगे, तो क्या बनेगा 0 टू a स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। और जो y लिमिट है, y की मिनिमम वैल्यू क्या है 0, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है b, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट क्या होगा y एक्सिस का, y एक्सिस पर इस एलिप्स का b, तो y इज इक्वल टू b तक जाएगा। तो 0 टू b विद रिस्पेक्ट टू y। सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन शायद हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शो दैट द एरिया बिटवीन द पैराबोलास बाय स्क्वायर 4ax x इज इक्वल टू 4ay इज दिस। तो एक पैराबोला हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x 4ax, और दूसरा पैराबोला हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो आपको पता है इसका हमें बाउंडेड रीजन निकालना है, बाउंडेड एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन द पैराबोलास, दीज टू पैराबोलास। तो हमारा एरिया क्या हो गया, ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट में हम देख लेते हैं, मींस मिनिमम मैक्स, वही तो हमें किसके रिस्पेक्ट में पहले करना है। तो अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये y स्ट्रिप बनेगी, तो लोअर लिमिट हमें इस पैराबोला से मिलेगी, तो इस पैराबोला यानी ये वाली इक्वेशन से। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर बाय 4a, क्लियर, एक्स स्क्वायर बाय 4a। और अपर लिमिट हमें इस पैराबोला से मिलेगी, तो इस पैराबोला पर y की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर 4ax है, तो y की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ax, सो 2 स्क्वायर रूट ax, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस पर ले रहे हैं। और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, मिनिमम वैल्यू x की 0 है और मैक्सिमम यहाँ पर तक जाएगा, यानी 4a। दोनों पैराबोला कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, 4a पर, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी x की 4a तक, 0 टू 4a, क्लियर। तो अब ये आपका, क्योंकि एरिया निकालना है इसलिए इंटीग्रांड इज ऑलवेज 1। तो पहले आप y के रिस्पेक्ट में करिए, यानी इंटीग्रेशन आ गया y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये मिला, आप इसको x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ऐसे ही आप ये भी रिवर्स भी कर सकते हो, आप x के करस्पॉन्डिंग अगर स्ट्रिप बनाएंगे तो x की लोअर लिमिट हमें इस पैराबोला से मिलेगी, यानी x की लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाय, यानी 2 स्क्वायर रूट a y, और मैक्सिमम लिमिट हमें यहाँ मिलेगी, यानी y स्क्वायर बाय 4a। ऐसे ही y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर इस पॉइंट तक, तो वो भी 4a है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आंसर विल बी 16/3 a स्क्वायर। फिर कैलकुलेट द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व r is equal to a sec theta plus cos theta and its asymptote. Again, for that you need to know how to find out the curve r is equal to a sec theta plus cos theta, क्योंकि स्टैंडर्ड कर्व नहीं है तो आपको याद नहीं होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, बट यूजिंग द कर्व ट्रेसिंग टेक्निक वी कैन स्केच दिस कर्व। सो दिस इज r इज इक्वल टू a sec theta plus cos theta। अभी आप अज्यूम कीजिए कि इसका स्ट्रक्चर ये है, and its asymptote, so this is called the asymptote of this line। so इसके asymptote आपको निकालना, किसी भी कर्व के asymptote कैसे निकालना होता है, I think you have already studied this in 12th,
हाउ टू फाइंड आउट द एसिम्पटोट ऑफ एनी कर्व. सो अगर आप इस कर्व के एसिम्पटोट निकालोगे, दिस विल बी r इज इक्वल टू a sec थीटा. क्लियर? So this is your curve and this is your asymptote. We have to find out the area between the curve and its asymptote, means this area. Clear? तो बिकॉज अब हमारी जो फॉर्म इक्वेशन है, कर्व है, वो पोलर फॉर्म में है, तो एरिया भी पोलर फॉर्म में निकालेंगे. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? रिक्वायर्ड एरिया इज, आप देखिए इसमें हमने ये कंसेप्ट यूज किया है क्योंकि हमें ये एरिया टोटल निकालना है. तो आप अगर अपसाइड का अगर ये वाला एरिया निकाल दोगे, दिस इज इक्वल टू दिस एरिया, दोनों इक्वल है, मिरर इमेज है, तो इसको हमने 2 टाइम्स कर दिया है. हम केवल क्या कर रहे हैं, केवल ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, और इस एरिया में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा. तो हमने वही किया है 2 टाइम्स. आप देख लेते हैं इस एरिया में लिमिट्स क्या है. क्लियर? तो अगर हम r को ड्रॉ करेंगे, r 0 से लेकर ऐसे ड्रॉ होता है, तो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में ही रहना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है r की, इस लाइन पर मिलेगी. तो इस लाइन पर r की वैल्यू क्या है, a sec थीटा, और मैक्सिमम है इस लाइन पर जाना है. इस लाइन पर r की वैल्यू क्या है, a sec थीटा प्लस cos थीटा. तो लिमिट a sec थीटा से a sec थीटा प्लस cos थीटा. ठीक है? और पोलर फॉर्म में एरिया फॉर्मूला क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन r dr d थीटा. क्लियर? ये फॉर्मूला होता है. तो हमने r की लिमिट्स निकाली. नेक्स्ट थीटा, तो इस कर्व में आप देख लेते हैं तो थीटा कितना वेरी कर रहा है. तो थीटा हमारा क्या कर रहा है, देख लिए, 0 से अगर आप मूव करेंगे तो मिनिमम तो यहां पर है थीटा, मींस क्या करना है आपको, तो ये कर्व है आपका और ये एसिम्पटोट है. तो अगर इस कर्व पर देखें तो मिनिमम तो थीटा यही होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो कहां तक जाना है आपको, इस कर्व तक जाना है. और इस कर्व पर यानी ये क्या है, जस्ट एसिम्पटोट इसके वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है, तो क्या मींस ये कितना एंगल होगा, पाई बाय 2. क्लियर? यहां से लेकर एंगल हमें यहां तक मूव करना है. तो इस लाइन, इनिशियल लाइन पर थीटा क्या होता है, 0, और जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते रहते हो डायगोनली, तो आपको थीटा इंक्रीज होता जाएगा. तो कहां तक जाना है, क्योंकि इस लाइन तक हमें बाउंड होना है, तो इस पॉइंट से, इनिशियल लाइन से थीटा 0 हो गया, और यहां से आप जैसे ही यहां तक गए तो थीटा कितना हो गया, पाई बाय 2. तो 0 टू पाई बाय 2. क्लियर? बस आपको इंटीग्रेट करना है. तो पहले आर के रिस्पेक्ट में करिए, तो आर का क्या हो जाएगा, r² बाय 2. आर की लिमिट्स लगाइए और फिर जो भी आए आंसर उसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए. नेक्स्ट, एरिया लाइन इनसाइड द कार्डियोइड r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा. तो जैसे हमने एक क्वेश्चन और किया था पोलर फॉर्म में, वो r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा था, तो उसका स्ट्रक्चर ये था कार्डियोइड का. लेकिन जब r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है. क्लियर? सो दिस इज योर कार्डियोइड, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, एंड आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू a. तो पहले आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए. r इज इक्वल टू a, ये आपका सर्कल हो गया. फिर कार्डियोइड जो है r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, वो इस तरह से ड्रॉ होगा. वो ये और ये आगे तक जाएगा. ठीक है? तो ये अब यानी हमें क्या लेना है, एरिया लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड, जो कार्डियोइड के अंदर है. यानी कार्डियोइड क्या है, ये वाला कार्डियोइड है. सो इनसाइड द कार्डियोइड एंड आउटसाइड द सर्कल, इस सर्कल के बाहर, यानी केवल रीजन क्या हो गया, ये वाला. क्लियर? सो इनसाइड द कार्डियोइड एंड आउटसाइड द सर्कल, एरिया हो गया हमारा ये वाला. तो हमें ये फाइंड आउट करना है. तो पोलर फॉर्म है, इसलिए एरिया का फॉर्मूला अगेन, पहले तो हमने क्या किया, क्योंकि टोटल एरिया जो ये एरिया होगा वो ही ये एरिया होगा, और इसलिए हमने 2 टाइम्स किया. आप किसी हम एक साइड का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम ये वाला अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा रीजन हो गया. अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालना है, तो पहले तो पोलर फॉर्म है, तो डबल इंटीग्रेशन r d थीटा dr, ये हमारा फॉर्म हो गया. नेक्स्ट r की वैल्यूज, तो r की हम वैल्यू क्या है, ओरिजिन से मैक्सिमम जहां पर भी जा रहे हैं, तो मिनिमम तो हमें इस कर्व पर मिल रहा है. सो इस कर्व, यानी ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है. तो सर्कल क्या हो गया, r इज इक्वल टू OP मींस r इज इक्वल टू a, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, इस कार्डियोइड, इस कर्व तक जा रहा है. वो कर्व क्या है, कार्डियोइड वाला है. सो r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, ये r की लिमिट हो गई. और इसमें थीटा की लिमिट्स देख लेते हैं. तो थीटा मिनिमम तो इनिशियल लाइन से क्योंकि है, तो इनिशियल लाइन पर तो थीटा 0 हो गया, और मैक्सिमम ये पॉइंट जहां पर जा रहे हैं, देखिए ये एरिया ऐसे नहीं, ये पॉइंट यहां तक जा रहा है, तो यानी यहां से लेकर यहां तक जो होगा थीटा, वो हमारा पाई बाय 2 हो जाएगा.
सो 0 से पाई बाय 2. अब सिंपली इंटीग्रेट करना है, फिर r की लिमिट्स लगाना है, थीटा की लिमिट्स लगाना है. सो यू विल गेट योर एरिया inside the curves. So in the next lecture we will study about the triple integration. So now we have studied about the double integration in Cartesian form, double integration in polar form, change of order of integration in double integration, and the application of double integration in finding out the area. So in the coming lecture we will start the triple integration. So now we have the three variables x, y, z. So the limits of three variables, x limits, y limits, z limits. So we have to consider the order, in which order we have to integrate the triple integration. पहली लिमिट किसकी लगानी है, दूसरी किसकी लगानी है, तीसरी किसकी लगानी है. Clear?